Good morning all dear students. Myself Deepika Dhanwani and I am heartily welcome you on the behalf of Iden Institute of Commerce and the Genius Schools of Commerce. Today we are taking the class of 11th accountancy subject. On the previous classes, if you remember, we discussed deeply on the types of account which is categorized in major three parts: personal, real and nominal, and we discussed regarding the rules according to the types of accounts. The rule of personal account in debit and credit, the rules of real account, the rules of nominal account. And we also completed one exercise or the practice question to identify the nature of accounts in every transaction or each transaction, and try to apply a little bit how we apply the rule of debit and credit. Now for going on the further topic, firstly we will have to understand some terminologies of accountancy. They are the basic sum up of the terminology which is more important for a student to understand. First terminology is mentioned here, capital. As I remember to discuss that in previous class, capital means a investment made by the owner to commence the business is known as capital. बिजनेस में अकाउंट्स में कैपिटल वो है जो भी ऑनर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस सेटअप करने के लिए जो भी अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल में काउंट होता है. गॉट इट? द सेकेंड टॉपिक इज ड्रॉइंग. व्हेन द ऑनर ऑफ बिजनेस का ऑनर विड्रॉज गुड्स और कैश, बिजनेस में से गुड्स या कैश या दोनों ही from the business for the personal use. Here you mention the word personal use. जब भी कोई ऑनर अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपनी निजी जरूरतों और आवश्यकताओं के लिए बिजनेस से कोई गुड्स विड्रॉ करता है, कोई कैश विड्रॉ करता है, तो वो ड्रॉइंग में कंसिडर होती है. फॉर एग्जाम्पल हमारा कपड़ों का बिजनेस है, तो उसमें से कुछ सम ऑफ pieces of clothes I dispatched from the business for my personal use is considered a drawing. The major next third topic is liability. The amount which is yet not paid. Recently वो पे नहीं हो रहा है at that time of the point of time. अभी पेमेंट नहीं हो रहा है. But it is payable in future. पर भविष्य में उसका पेमेंट जरूर किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी देखते हैं जब हम उधार रखते हैं, उधार लेते हैं, तो स्टिल मतलब एट द टाइम पॉइंट पे हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं. वो बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी कहलाती है अकाउंट्स में. मेजरली देयर इज टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. इंटरनल लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, देयर इज अगेन द टू डिविजन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. एक बिजनेस की अपने ऑनर के प्रति जो लाइबिलिटी है वो इंटरनल लाइबिलिटी में काउंट होती है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक बिजनेस की अपने थर्ड पार्टी से जो लाइबिलिटी है, जिसमें वो मार्केट से गुड्स खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, XYZ, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के या इधर बैंकों से लोन ले रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी में काउंट होगा. Now on the basis of time, there is a major two distribution: current liability and non-current liability. The current liability which is payable within 1 year. Definitely liability हमें पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो जो लाइबिलिटी विदिन 1 year में पेमेंट हो जाती है या करना ही पड़ता है, which is considered a current liability. और those liability which has the duration of more than 1 year, जैसे बैंकों के लोन, हम 4 year, 5 year, 10 years के लोन लेते हैं, मतलब हम मोर देन 1 year में उसका पेमेंट कर रहे हैं, which is considered a non-current liability. Got it? So liability has the major two divisions on the basis of relation or on the basis of time. Relation में internal and external. Internal means business की liability owner के प्रति, and external means the business has liability towards the third party. And in current and non-current, the liability which is payable within 1 year is current liability, and the liability which is payable more than 1 year means non-current liability. The next major topic is our assets.
Assets means economic resources which are held by the owner, from which there is the expectation of economic benefit to the business in future. कोई भी assets business में इस पर्पस से ही हेल्ड की जाती है, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ ही परचेज की जाती है कि वो फ्यूचर में बिजनेस को बेनिफिट देगा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने मशीन लगा रखी है और आपका प्रोडक्शन हो रहा है और अभी ये नॉर्मल मशीन है, इसमें और एडवांस फीचर आ रहे हैं जो आपको कम टाइम पीरियड में और ज्यादा प्रोड्यूस करके देंगे आइटम्स को, तो डेफिनेटली वी विल गो और मूव टुवर्ड्स सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ उसे परचेज किया कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जो अल्टीमेटली और फाइनली बिजनेस को बेनिफिट देगा। तो असेट्स वही है जो इस एक्सपेक्टेशंस के साथ हम बाय करते हैं या खरीदते हैं कि फ्यूचर में वो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देगा। असेट्स इज आल्सो द मेजर 3 डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन यू कैन से, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। रिगार्डिंग द नॉन करंट असेट, द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिसका पीरियड 1 साल से ज्यादा है, वो नॉन करंट असेट है। Non-current asset has the major 2 distribution, tangible and intangible. Tangible assets are those assets which has the physical existence. जिसका physical existence है वो tangible assets है। मीन्स आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। कोई भी प्लांट लो, कोई भी फर्नीचर लो, कोई भी लैंड लो, कोई भी मशीनरी लो, ये सब tangible assets में आते हैं। And regarding when we talk about the intangible assets which do not hold any physical एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे गुडविल, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, जैसे लिवाइस ब्रांड का नाम लेते ही एक इमेज बनती है, एडिडास का नाम लेते ही एक इमेज बनती है। सो हियर वी कैन कंसिडर इट इंटेंजिबल असेट्स। सेकेंड इज करंट असेट्स, टाइम इज लेस देन 1 ईयर एंड इजीली कन्वर्टेड इन कैश। वो सारी असेट्स जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिकली जिनका टाइम पीरियड भी 1 साल से कम होता है, जिसमें आपके बैंकों के बैलेंसेस आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं। इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड स्टॉक एंड डेटर, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक्स। आई थिंक इट्स जस्ट कमिंग आफ्टर 8th और 10th पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट असेट्स। नाउ नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट्स। Fictitious assets don't consist any kind of physical existence. कोई physical existence नहीं है, उसकी कोई भी realizable value नहीं है, zero है। Realizable value means after 2 years, 3 years, if you want to sold out in the market, तो उससे आपको कितनी रिकवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक मशीनरी खरीदी, आफ्टर 3 years I want to sell it, तो 3 साल बाद मुझे उससे कितना वैल्यू रियलाइज होगा, इसे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू किसी असेट्स की। The benefit of these expenses is available for the period of more than 1 year. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, उनपे कितने ही यू कैन से इन द लैक्स वी इन्वेस्ट द अमाउंट, बिजनेसमैन उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो वो मोर देन 1 ईयर, मतलब उन्हें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है। एडवर्टाइजमेंट से पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी से उनके प्रोडक्ट का मार्केट में इंट्रोडक्शन होता है, तो फाइनली अल्टीमेटली वो बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। तो ये एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्टिशियस असेट्स में काउंट होते हैं। सो द असेट्स हैज द 3 डिवीजन, नॉन करंट असेट, करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट। नॉन करंट असेट इज टेंजिबल, इनटेंजिबल, हियर करंट असेट्स एंड हियर फिक्टिशियस असेट्स। नाउ नेक्स्ट इज परचेज। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ दैट गुड्स ट्रीटेड एज परचेज। कोई भी बिजनेसमैन जिसमें अपना बिजनेस करता है वो परचेज में काउंट होता है। स्टेशनरी का बिजनेस है, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, शार्पनर, मेरा परचेज में काउंट होगा जब मैं उन्हें परचेज करती हूँ। किसी भी फर्नीचर सोल्ड करने का मेरा बिजनेस है, तो डेफिनेटली मैं जब भी फर्नीचर बॉट करती हूँ तो वो मेरा गुड्स है, परचेज में काउंट होगा। द सेल, अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ दैट गुड ट्रीटेड एज अ सेल इन अकाउंटिंग। ऑब्वियसली जब भी कोई बिजनेस वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, मीन्स वहां पर बाइंग और सेलिंग प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। तो मैं गुड्स खरीद करके डेफिनेटली उसे सेल करूंगी, कुछ प्रॉफिट अर्न करके। तो
तो जब मैं अपने गुड्स जिनको मैं बिजनेस पर्पज से खरीद रही हूँ और उसे आगे सोल्ड आउट कर देती हूँ, वो मेरे सेल्स में काउंट होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक। गुड्स परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर ट्रेडिंग पर्पज रिमेन अनसोल्ड। वो गुड्स जो मैंने परचेज किया था सेल मतलब सोल्ड आउट करने के लिए, पर वो किसी भी रीजन से बिक नहीं पाया, तो वो मेरे अनसोल्ड स्टॉक में या स्टॉक में काउंट होता है। ऐसा बहुत बार होता है, हम बिजनेस में कितने ही सामान ले आते हैं, बस किसी भी रीजन से वो सेल आउट नहीं हो पाता है, तो वो हमारा स्टॉक में काउंट होता है डेफिनेटली। और फ्यूचर में हम उसे या तो कम रेट पे सोल्ड आउट करेंगे या कुछ समय बाद सोल्ड आउट करेंगे। नेक्स्ट, डेटर। When businessman sold goods on credit to his own customer, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सेल करता है, तो जिस व्यक्ति को वो सेल किया जा रहा है, विच इज द पर्सन और कस्टमर इज नोन और कॉल्ड डेटर, वो व्यक्ति डेटर कहलाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रेडिटर। When a businessman purchase a goods on credit basis, जब भी बिजनेसमैन गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे परचेज करता है, तो जिस पर्सन से वो परचेज करके ला रहा है, वो पर्सन क्रेडिटर कहलाता है। नाउ द डिस्काउंट। In previous class we detailed we made the discussions on the topic of discount, also the trade discount and the cash discount. Trade discount is not recorded. सिखाएंगे आपको रिकॉर्ड नहीं करने का मतलब क्या है, जनरल बुक बनती है फर्दर क्लासेस में। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली एक अमाउंट या एक परसेंटेज डिडक्ट कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है क्विक कलेक्शन, आपको क्विकली कलेक्ट करना है मार्केट से पैसा, तो हम इस तरीके के डिस्काउंट्स उनको सामने वाले को ऑफर करते हैं। द लास्ट टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट्स रिड्यूस्ड बाय अ सर्टेन रेट। कोई भी असेट्स की वैल्यू जब रिड्यूस होती है एक सर्टेन रेट से, तो जितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, हम हमारे पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं, आज मार्केट में लेकर आए, आफ्टर 1 और 2 इयर्स डेफिनेटली उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूज करने से टाइम पीरियड के साथ धीरे धीरे उसकी वैल्यू मार्केट में कम होती जाती है। सिमिलरली ऐसा बिजनेस पे भी अप्लाई होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना है डेप्रिसिएशन। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।